So rectangular hyperbola. What is rectangular hyperbola? Sir, a hyperbola in which a is equal to b. If you have equation x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. So if you take a is equal to b, then this hyperbola will become a rectangular hyperbola. So x square minus y square is equal to a square. Okay. And its eccentricity is e is equal to √2. And if you plot, as I told you, that this xy is equal to constant, this is also a rectangular hyperbola. So its figure will be like this. If c is positive, so it will be lying like this. First and third quadrant in this way. So this is a hyperbola, you can see this is a center C, and here you can see that this is your conjugate axis, and this is, if you will take like this, it will be your transverse axis. If C is less than 0, it will be in the second and fourth quadrant. This particular. This is a limiting case of hyperbola. You can see here. This is what is the limiting case of a hyperbola? Like circle is a limiting case of ellipse under some consideration. Parabola is a limiting case of ellipse under some consideration. Similarly, if you have x square upon a square minus y square upon b square की value hyperbola में, you know, is how much? A square e square minus 1. तो अगर मैं b square की value यहाँ ये रख दूँ, then we will see what will happen here. So a square is, you can take LCM, so you can write it x square minus y square upon e square minus 1 is equal to e square, a square. Now if we fix e and let a tending to 0, if e is fixed and a tending to 0, e को हमने fix करा है अभी, तो और e fix है a tending to 0, so it means what? The equation will become, this equation becomes x square minus y square upon e square minus 1 is equal to 0. This thing tending to 0, so this thing left will equal to 0. Now it is what? X square minus y square. It represents a pair of straight line if which represents a pair of straight line because delta is how much here? Delta 0. अगर हम delta निकाले इक्वेशन कंपेयर करके ए बी सी एच जी एफ एफ है ना, ये डेल्टा होता है. सो हेयर, और वो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती थी आपकी, उसमें जो डेल्टा आता था क्या है? व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक? पीछे कई बार लिख चुके हम, जिसका ये डेल्टा आता था. व्हाट इज दैट इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx Plus 2my plus. है ना, ये आती थी ना इक्वेशन. तो here if you compare it, if you compare, तो here your h is 0 ना, सिर्फ a और b के कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पे. a और b you have h0, g0, f0
and C0. So you will see that your delta will be coming 0. 0, 0, 0, this is 0, 0, and this is 0. तो ये आपकी पूरी रो 0 हो जाएगी ना ये वाली GFC, है ना? So delta will be 0 here. So this represents a equation of pair of straight lines here. So it means that this is the limiting case of hyperbola is pair of straight line. है ना? In that case, so कि हमने a tending to 0 लिया तो it is representing this, keeping E fixed. So thus a pair of straight lines is a limiting case. Of a hyperbola. Whose axes are infinitesimal. Infinitesimal. While their ratio is finite. Coordinates you can find in a single parameter. Hyperbola whose axes are infinite. Infinitesimals. जो एक्सेस है आपकी ये इनफाइनाइट, हाँ मतलब ये एक्सेस यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों किसी भी इन जनरल है ना, रेक्टेंगुलर की या नॉर्मली, सो दे आर जस्ट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना? ये बाउंड नहीं हो रही कहीं पे भी, से एलिप्स में हो जाती है बाउंड आपकी. सो लाइक दिस, इफ दिस इज द एक्सेस लाइक दिस. इसी से अभी हम आगे डेफिनेशन लेकर लिखेंगे. अभी इनफाइनाइट केस में हाइपरबोला में देयर आर सेवरल केसेस. अभी एसिम्प्टोट्स की बात करेंगे. एसिम्प्टोट्स आपने शायद पढ़ा होगा पीछे कैलकुलस में भी. यस सर, कैलकुलस में. हाँ, तो एसिम्प्टोट्स भी है हाइपरबोला में. यू हैव एसिम्प्टोट्स आल्सो. तो फर्स्टली वी विल सी व्हाट आर द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स. जैसे a cos t b sin t थे, इसमें क्या होंगे? द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स. द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स of any point x y on the hyperbola they are x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta, है ना? क्योंकि डिफरेंस है, देखिए जब पुट करेंगे आप तो यू विल गेटिंग a स्क्वायर कैंसिल आउट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा व्हिच इज इलिप्स में प्लस था तो cos थीटा और sin थीटा होते थे. So these are the parametric coordinates when you want to write points in a single parameter. So you can represent in this way. और हाइपरबोलिक में भी कंसीडर कर सकते हैं. x is equal to a cos hyperbolic t and y is equal to b sin hyperbolic t. क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन में cos hyperbolic स्क्वायर t माइनस sin hyperbolic स्क्वायर t ये 1 होता है. ठीक है, हाइपरबोलिक में generally cos square theta plus sin square theta is 1. For hyperbolic function the difference is 1. So these two representation are there for a point in a single parameter, this or this. So I can take anyone. I will take this. इसे solve करना आसान, sec theta cos theta के फॉर्म में. ठीक, इसे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 208. In a rectangular hyperbola, prove that SP dot SP dash is equal to CP square. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है अगर आपके पास तो शो करना है आपको
तो एसपी डैश क्या है, फोकल लेंथ. तो प्रोडक्ट ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू सीपी स्क्वायर. मींस इफ यू remember, if you are taking the figure like this, so here suppose some point P and this is your suppose center C. Rectangular hyperbola है. So if you have S is the focus and suppose S dash S dash P है ये S dash P. This is your S dash. So the distance product of the distance this SP dot S dash P this equal to this CP स्क्वायर. तो यहाँ पे बस आपको इन सबके डिस्टेंसेस निकाल के प्रोडक्ट निकालना शो करना ही आएगा. तो P का कोऑर्डिनेट क्या लूंगा मैं यहाँ पे, जो भी मैंने आपको बताया. I will take the parametric coordinates because it's a rectangular hyperbola, so we know. So let P a sec theta and B tan theta. B tan theta. है ना. These be any point on the rectangular hyperbola. This is any point on the rectangular hyperbola. Suppose x square minus y square is equal to a square. है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया. जब a is equal to b, so this is your rectangular hyperbola in general. And we know eccentricity is 2, root 2. E is equal to root 2. Okay. So now I will find. तो अगर E root 2 है, देखिए तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके, याद है, AE, 0. So what is AE then? Root 2 A, 0 है ना. ये आपको S से कोऑर्डिनेट पर चल गए. Similarly S dash is how much? Minus A root 2, 0 because rectangular hyperbola के लिए E is root 2. So you have, and P is already this. So I can find I will find a distance between SP. So SP square लिख देता हूँ मैं, क्योंकि I will not take square root. So SP square will be how much? A sec theta minus root 2a whole square. And plus A tan theta minus 0 square. So A square tan square theta ना, क्योंकि this coordinate is 0 x axis पे. Or you can solve it. So you can take A square common. So you have sec square theta and take this common, so plus 2 and minus 2 root 2 sec theta. And A square is also common here. इसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं tan square theta. अब इसे सबको एक काम करो, सबको tan में रिप्लेस कर लीजिए. And you know 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. सबको tan में अगर हम कर ले तो ये आएगा 1 plus tan square theta. तो 1 आएगा इधर, 1 plus 2 is 3 और tan square theta plus tan square theta 2 tan square theta है ना. इस टर्म को मैंने ऐड कर लिया. एंड माइनस ट्वाइस रूट 2 sec theta. ठीक है, इससे आगे तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, जस्ट लीव इट हियर. तो इट इज योर SP स्क्वायर. तो सिमिलरली you can write SP dash, sorry S dash P square है ना. S dash में माइनस a रूट 2 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा बस. So it will be coming a square 3 plus 2 tan square theta plus twice root 2 sec theta है ना. सिर्फ माइनस साइन दिया, प्लस लिखेंगे आप यहाँ पे तो प्लस साइन आ जाएगा. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सपोज 3. So you got SP square dash P square. Now I will find CP square. So CP क्या है? This is your origin center. So CP square क्या? This is 0 0. So CP square direct you can write this minus 0 square plus this minus 0 square. So A square sec square theta है ना plus B square tan square theta. ये तो आएगा. और यहाँ पर B is equal to A है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर, तो ये भी पॉइंट क्या है एक्चुअली, ये भी A है. This is also A. So you got CP square is equal to A square outside sec square theta plus tan square theta है ना. इसको भी मैं tan में लिख लूँ by this formula. So it will become A square 1 plus 2
tan स्क्वायर थीटा। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 4 कर दी। अब आपको बस प्रोडक्ट शो करना था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, यही चीज है ये। सो एस पी स्क्वायर इंटू एस डैश पी स्क्वायर, so take the product of 2 and 3, so it will become a to the power 4, और देखिए ये क्या है, ये सेम टर्म है, अगर इसको मैं a मान लूं तो a माइनस बी a प्लस बी, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। सो इट विल बिकम 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस रूट 2 sec थीटा होल स्क्वायर, ना। मैंने इनका प्रोडक्ट करा है बस 2 इंटू 3, तो आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका है मतलब x माइनस वाई और x प्लस वाई, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स। इस होल स्क्वायर को यू कैन ओपन, बस अब अरेंजिंग और टर्म्स है। जब आप ओपन करेंगे देखिए 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा मीन्स 4 tan टू द पावर 4 थीटा एंड प्लस 3 टू द 6 tan स्क्वायर 3 टू द 6 टू द 12 12 सर। tan square theta and minus 2 root 2 to the 4 to the 8 sec square theta। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा। इसको भी एक काम करो, sec square theta को फिर tan में लिख लीजिए आप, ये कितना है 1 प्लस tan square theta, है ना, sec square theta। इससे क्या टर्म्स आएंगे देखिए, अभी कितना आएगा 9 और माइनस 8, ये जो 1 है, हियर इट इज 1 प्लस 4 tan 4 थीटा और 12 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा, कितना बचा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको आई कैन राइट, अब ये कितना है a4, ये होल स्क्वायर बन गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, और ये क्या है देखिए, इट इज योर cp स्क्वायर का स्क्वायर। cp स्क्वायर क्या था, ये पूरा टर्म, सो दिस दैट मीन्स sp स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आया, तो अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो यू हैव sp डॉट sp इज इक्वल टू cp स्क्वायर, है ना। इधर पावर 2 है, इधर पावर 4 है, 2 की पावर 2 4, तो यहाँ पे एक पावर रह जाएगी, ये प्रूव करना था। ये इस पे एक प्रॉब्लम थी सर लास्ट वाला एक बार और रिपीट कीजिएगा सर, cp स्क्वायर के स्क्वायर। ये cp4 है ना, ये क्या है cp पावर 4, और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में sp डॉट sp होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर तो सिंगल पावर रह जाएगी, यहाँ पावर 2 बस, ये प्रूव करना। ये प्रोडक्ट तो यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पावर 1/2 आएगा ना। कहाँ सर यहाँ से अगर पावर रिमूव करेंगे इधर आएंगे तो पावर 1/2 होगा ना। अरे ये ऐसे है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y4, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, ये तो लिखोगे, यस वही करा yes, बस sir. मैंने यहाँ, ये एक टर्म का स्क्वायर था, ये इसका पावर 4 था, ठीक है। यस सर। चलो, तो एक प्रॉब्लम आपकी इसमें एक ही प्रॉब्लम थी आई थिंक, और इसमें और ठीक है। So it was problem number this 2808 page पर। Next article we have 11.21 page 209, tangent and normal at the point। टेंजेंट अगर आपको पता है तो नॉर्मल तो आपको निकालना आता ही है, स्लोप को -1/m करके। पॉइंट भी हमें मालूम चल गया है, a sec थीटा b tan थीटा, है ना। जनरल लूंगा मैं तो a sec थीटा b tan थीटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लूंगा तो a sec थीटा a tan थीटा। सो टेंजेंट की क्वेश्चन यू नो ऑलरेडी, है ना, क्या होती है x x डैश, हाँ। So if you have hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, if this is your s conic
then tangent is x dash upon a square minus y dash upon b square is equal to 1. और x dash y dash अगर पॉइंट आपको इस फॉर्म में दिए हैं तो ये फॉर्म में दीजिए. तो दिस आई कैन राइट x a sec theta upon a square minus y b tan theta upon b square is equal to 1. So a is power cancel out, b is cancel out. So you got sec थीटा से भी अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा x अपॉन ए. sec थीटा से डिवाइड किया हमने तो क्या हो जाएगा ये tan थीटा अपॉन sec थीटा, है ना. क्या हो गया tan थीटा अपॉन sec थीटा बताइए. सर साइन बाई कॉस अपन 1/6 सिर्फ साइन बचेगा. साइन बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा विच विल बी cos थीटा. तो ये आपकी cos ऑफ टेंजेंट आ गई सिंपल sin थीटा cos थीटा की फॉर्म में. हम बेसिकली किसी भी इसको sin cos में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं बिकॉज sin cos थीटा इज यू आर फैमिलियर विद sin थीटा cos थीटा यानी इट इज इजी टू सॉल्व. इसलिए मैंने sec tan को इस फॉर्म में लिख दिया. अब यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं. अगर से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें वैसे तो ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी. अब अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो नॉर्मल के लिए इसका स्लोप अगर आप निकालना चाहें तो इसको आप y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखेंगे. तो क्या करेंगे टेक दिस राइट हैंड साइड टेक इट हियर x अपॉन ए b अपॉन साइन थीटा से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा b अपॉन साइन थीटा x अपॉन ए एंड माइनस कॉस थीटा है ना, ये इधर आएगा तो माइनस कॉस थीटा और साथ में क्या है b कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. उसे मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा. तो इट इज द स्लोप, है ना. ये स्लोप हो गया टेंजेंट का. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज हाउ मच माइनस ए साइन थीटा अपॉन बी. देखो कैलकुलेशन सही करिए, कुछ गलत तो नहीं है. y से इधर ले गए b से मल्टीप्लाई साइन थीटा से डिवाइड है, ये तो आ जाएगा. तो इट इज द नॉर्मल. सो दिस इज द नॉर्मल. तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट whose slope is this. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग, इसे सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक, ये आप खुद निकाल के चेक करेंगे हाउ इट इज कमिंग. उसी फॉर्मूले से y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. ठीक, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इज इट क्लियर? लास्ट में क्या है ax cos थीटा यस प्लस by cot कॉट थीटा. थीटा जी. ठीक है, बुक इस पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, बुक आप सॉल्व करके लिख सकते हैं. अगर देखेंगे तो यही आ रहा होगा. कर लेंगे इसे इस फॉर्मूले से y माइनस b tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप माइनस a sin थीटा बाई b x माइनस a sec थीटा. इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे आप देखिए तो इधर b y आ जाएगा. tan को साइन में साइन अपन कॉस में कर लीजिएगा तो कॉस भी इधर आ जाएगा साथ में और फिर ये सब टर्म्स अरेंज करने हैं. ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आ जाएगी ये चीज. ठीक है, आई एम लीविंग इट फॉर यू, यू कैन ट्राई. सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, चेक करके बताइए क्योंकि बुक में भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने भी डायरेक्ट लिख दिया इसलिए यहाँ पे सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन. 4 normals can be drawn. 4 normals can be drawn to a hyperbola from a point in its plane. ये एक नोट है यहाँ पे कि 4 normals can be drawn to a hyperbola from a point in its plane. अगर प्लेन में कोई पॉइंट है एक्सटीरियर तो 4 नॉर्मल ड्रॉ की जा सकती है. इसको आप वेरीफाई करिएगा.
कैसे होगा ये? मैं नेट पे सर्च कर रहा था, इसमें बुक में डायरेक्ट पॉइंट लिखा हुआ है 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। आप मुझे वेरीफाई करके बताएंगे ये कैसे आएगा ये आपके शायद सीबीएसई बोर्ड में। हाँ बताइए। यस सर ये हमें करना होगा वेरीफाई? हाँ, ये वेरीफाई करके बताओगे आप मुझे कि 4 नॉर्मल्स कैसे ड्रॉन कर सकते हैं। 4 नॉर्मल्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इस इक्वेशन को, तो इसके 4 रूट हैं। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना? तो देयर शुड बी 4 रूट्स। If you have a point outside, then 4 normals can be drawn on any hyperbola. इसे मैं एज एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप बताएंगे ये चेक करके मुझे। नेक्स्ट थिंग वी हैव द asymptotes. So just next article है the asymptotes. बताइए व्हाट इज द asymptote? क्या आपने पढ़ा, क्या याद है, किसे कहते हैं asymptote? कुछ पता है? A straight line. सर y में mx प्लस c की वैल्यू पुट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, वो तरीका नहीं, हाउ टू फाइंड, वो तो बात की बात है। A straight asymptotes है क्या? A straight line which touch a curve at infinity, है ना? वो स्ट्रेट लाइन जो कर्व को टच करे एट इंफिनिटी, बट डज नॉट लाई होली एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे टच करे, डज नॉट लाई होली एट इंफिनिटी, इज कॉल्ड एन asymptotes. Asymptotes of the curve. ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको अगर दिखाया, या अभी मैं आपसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहा था, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने कैसे प्लॉट किया था, लाइक दिस। तो इसमें ये जो कर्व ड्रॉ करता हूं मैं, तो इसमें अगर आप एक्स एक्सिस को देखें और वाई एक्सिस को देखें, तो ये इसको क्या होता है, इट लुक्स लाइक इट विल टच दिस कर्व एट इंफिनिटी। तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं ना, इट इज रनिंग पैरेलल लाइक दिस, सो इट विल बी टच एट इंफिनिटी। तो जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दे आर द asymptotes टू दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना? देखो ये 2 लाइन से एक एक्स एक्सिस लाइन है आपकी y इज इक्वल टू 0, और ये y एक्सिस लाइन है x इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी टचिंग दिस हाइपरबोला, इस कर्व को कहाँ, इंफिनिटी पे टच करते हैं। हम कभी क्रॉस नहीं करते, बस ऐसे बना के छोड़ देते हैं, अगर आपने रेक्टेंगल हाइपरबोला देखा होगा तो, है ना? सो दिस इज द लाइन which touch the curve at infinity but does not lie wholly at infinity. कहीं टच करेगी इंफिनिटी पे, इंफिनिटी नहीं है बट इंफिनिटी पे टच करेगी कहीं जाके, है ना? दिस इज कॉल्ड asymptote of the curve. क्लियर है बात? ये मैंने पर्टिकुलर लिया था, या आप अगर ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले, रेक्टेंगुलर की जगह कोई भी हाइपरबोला ले ले आप जनरल, तो यहाँ पर भी आई कैन प्लॉट अ लाइन इससे पास होता हुआ, मैं दिखा सकता हूँ कि इस कर्व को कहीं जाके ये इंफिनिटी पे टच कर रहा होगा, ये लाइन है ना, ये लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, ऐसे करते हुए इट इज टचिंग एट इंफिनिटी, क्योंकि ये कर्व आपका हाइपरबोला क्या हो रहा होता है, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा होता है ऊपर, यूं, इट इज लाइक दिस। सो यहाँ पर दीज 2 लाइन्स passing through the center, they are asymptotes to this general hyperbola. ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला केस दिया मैंने, एक्स वाई इज इक्वल टू सी का।
So this is the definition. अब इसकी इक्वेशन कैसे, पर ये समझ में आ गया? पहले ये बताइए asymptote, what is सर asymptote? लास्ट वाला समझना सर, ए स्ट्रेट लाइन विच टच ए कर्व एट इंफिनिटी, ये समझ में आ गया हाँ, कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कर्व को इंफिनिटी पर टच करेगा बट डज नॉट लाई होली एट इंफिनिटी, का मतलब मतलब कि वो अगर उस हम ये नहीं कहेंगे कि इंफिनिटी है, अच्छा इंफिनिटी पे टच कर रहा है, इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी ओके वो इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी पे टच करेगा यहाँ के, है ना? वो स्ट्रेट लाइन इज, दैट स्ट्रेट लाइन इज नॉट अ इनफाइनाइट थिंग, इट इज टचिंग एट इंफिनिटी। ठीक है, उसके हम ओके इक्वेशन सर लिखेंगे कुछ, हाँ कोई इक्वेशन आएगी उसकी, जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। तो अगर हमें इन जनरल इक्वेशन निकालनी है एसिम्प्टोट की है, तो मैंने एक पर्टिकुलर बताया, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। दीज आर द एसिम्प्टोट्स फॉर अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस टाइप हाइपरबोला, xy is equal to c. But in general, if I want to find, so I will solve the general equation. So suppose the equation of the hyperbola, x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. इसको अगर मैं फैक्टराइज कर लूं तो क्या लिख सकता हूं? x upon a plus y upon b into x upon a minus y upon b is equal to 1. ठीक है, this I can write. Now this is a product of two straight line, है ना? ये क्या है? What is this? Straight line. This is straight line, क्योंकि power 1 है, यहाँ linear है ना? So this is a product of two straight lines. So the straight line, I am taking first x upon a plus y upon b is equal to, suppose, some constant k. This meets the hyperbola in points whose coordinates are given by, सपोज इसको मैं अगर k मान लूं, है ना, तो इसमें इससे अगर मीट करेगा तो ये लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी, तो वैल्यू रख सकता हूं मैं, व्हाट इज x अपॉन ए, k माइनस y अपॉन b, इसे उठा के यहाँ रख दिया हमने, तो क्या आएगी आपके पास? k इंटू k माइनस 2y अपॉन b इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगी, है ना? ये वैल्यू यहाँ रख दिया ताकि अगर ये इसे मीट करेगी तो क्या होगा? जस्ट पुट द लाइन इन दिस कर्व इन अ हाइपरबोला, so it will be satisfying this. Okay, समझ में आ रहा है भाई? I am just solving the line and the hyperbola. So what I did, I just took this value sum k and putting in the hyperbola equation. तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी तो क्या निकल के आया? x अपॉन a की वैल्यू यहाँ से क्या होगा? k माइनस y अपॉन b, पुटिंग इट हेयर, so you got this equation. अब यहाँ पर आप देखें तो ये सिंपल y में एक वैल्यू निकल कर आ रही है ना, यहाँ पर y कोई और टर्म नहीं है. We know that any straight line meets a conic in कितने पॉइंट्स पे करती है? 2 पॉइंट्स, है ना? ये हमने पढ़ा है. एंड स्ट्रेट लाइंस मीट अ कोनिक एट मोस्ट 2 पॉइंट्स. द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, सो हियर, अब यहाँ पर तो एक ही बार आ रही है आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. इट मींस व्हाट? द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यहाँ पर क्या है? 0 है. द कोएफिशिएंट ऑफ y square in the above equation being 0. ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी आपके पास कोनिक है
और आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, तो ये 2 पॉइंट्स पे कट करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लाइन को कोनिक के अंदर रखेंगे तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आती थी, तभी तो 2 रूट्स आते थे। एक रूट यहाँ रखेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, एक्स वाई निकाल देंगे यहाँ पे। बट हेयर इफ यू आर सॉल्विंग दिस, you are getting only simple 1 degree equation in y, so it will be giving you what, 1 value। तो इसका क्या हुआ कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, 0 है यहाँ पे, तभी तो नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स one of the value and one of the value of y is infinite। तो कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, one of the value of y is infinite। एक वैल्यू y की क्या होगी, इनफाइनाइट, एंड अदर वैल्यू of y, it is also infinite when k is equal to 0। अगर मैं k 0 ले लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी निकल के, यहाँ पे देखिए, y इज हाउ मच, 1/k से डिवाइड करोगे आप, है ना, और फिर सॉल्व करेंगे। तो जब k अगर 0 हो गया आपके पास तो क्या होगा, 1/0 समथिंग इनफाइनाइट। तो अगर k 0 है तो दूसरी वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगी यहाँ पे। इट मीन्स व्हाट, you have infinite when this k is 0। तो हमें वही तो लाइन चाहिए जो इनफाइनाइट पे टच करें, दैट इज एसिम्प्टोट्स। सो thus x upon a plus y upon b is equal to 0। this is the straight line